Yes, sir. Okay. Okay. Yes, sir. So yes, theories and approaches to study criminal behavior. What are those theories or approaches or factors जिनको study करके we can come forward and we can propose how crime and criminal behavior can be predicted and can also be controlled and countered. Okay. So we have three core factors of within criminology. Those three four factors primarily address the crime and criminal behavior. One is the biological factor, then we have psychological factor, and then we have social factors of crime. Okay. Today we are starting our uh, factors with with the name of a social factor. We call them sociological explanation of criminal behavior. Sociological explanation of criminal behavior. It means society में वो कौन से ऐसे theories या factors हैं जिनको study करके we can generalize an idea that these are the responsible factors behind crime or these are pulls and pushes behind criminal behavior. तो एक चीज तो बड़ी solid है कि that has been established, proven established fact that crime के पीछे कोई भी एक या दो या तीन factor है नहीं. There's not a one or two or three or four or five factor behind a crime. Crime is a complicated social behavior. It is as complicated as human. Okay. But what is important is here is by studying criminology and related sciences, we can eventually will enable our mind and our aptitude to study the most responsible factors behind different crimes. Because crime is not a generalized concept. Of course, it's a complicated concept, but it is not a generalized concept. Okay. Each and every crime is different from the crime. सब आपस में अलग अलग है. Even a single crime may have a different factors or different explanation. Okay. So looking at keeping in view these complicated scenario, we need to study, we need to classify the social factors according to the parameters of crimes. Okay. So within the social factors boundary, we have a wide list of theories. Of course, सब हम theories पढ़ नहीं सकते यहाँ पे because हम सब यहाँ पे सब concepts को briefly touch करें because you have only one subject within the one semester, so it's not possible for you people कि आप पूरी criminology की जो foundation है theoretical perspective of criminal behavior सबको पढ़ लें like one session. Therefore, the most feasible and best option is only to briefly touch the most important aspects of crimes or the factors of crime. So मैं आपको एक brief एक intro तो दूंगा कि what are those explanation, what is their philosophy, what is their doctrine. लेकिन हम जो explain जो हम discuss करेंगे वो उन्हीं concept को करेंगे जो सबसे ज्यादा discussed या ज्यादा अहम होंगे. Okay. तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहला जो हमारा जो फैक्टर है उसको हम कहते हैं सोशोलॉजिकल फैक्टर ऑफ क्राइम. अब इससे पहले कि मैं सोशल सोशल फैक्टर पर आऊं, मैं आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा कि लर्निंग क्या है. बिकॉज सोसाइटी में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं सोशलाइजेशन की बात करते हैं, ट्रेनिंग की बात करते हैं, ओके, तरबियत की बात करते हैं. सोसाइटी is basically built on values, norms, custom, culture, habits. Okay, society is not something like nature. It's not something like biology that we have. Biologically, we are हम जो भी हैं हम वो हैं. We cannot change our biology. We cannot change our psychology. Okay, but society can be addressed. Social norms can be different. That can vary. एक बंदा जो अमेरिका में है, जो पाकिस्तान में है, भले उसकी सोशल कल्चरली वो कितना भी डिफरेंट होगा, लेकिन जो जो उसकी बायोलॉजी होगी दैट इज वही होगी उसकी. वही लाइफ स्पैन होगा, वही जेनेटिकल मटेरियल होगा उसका, वही हार्मोन्स, वही क्रोमोसोम. सो जनरली बायोलॉजी इज सेम बिकॉज वी आर फ्रॉम सेम ह्यूमन रेस. ठीक है. So biological things can not be debated at larger perspective. Psychology may not be debated at that larger scale, but society can be debated, and we are social scientists, so we are here to debate and discuss society. अच्छा, kindly mic को speaker को off कर ले, otherwise I have to mute everyone. Ms. Nusrat, kindly off your speaker. Let me mute you. इनका तो mic mute है. There's someone else
मसब मलिक भाई अपना माइक म्यूट कर दें। कर दिया भाई, मुझसे यस सर। ये आपकी बैकग्राउंड आवाजें आ रही है? कर लिया सर, मैंने भी कर लिया अब। ओके, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। मुस्लिम ने असल में 2 शादियां की है ना, इसलिए सर। भाई मेरी एक भी नहीं हुई है, ऐसी बातें नहीं करो अभी। अभी ना हो के- अभी तक आवाज आ रही है भाई, अभी तक तो ये ठीक कह रहे हैं। या आप अपने दोनों दोनों घर चेक कर ले, या फिर सर ये छोटे घरों का यही मसला है ना सर। तो अभी इस वक्त ऑनलाइन क्लासरूम में आप एक एक्स्ट्रा छत पे एक कमरा बना लें। ये अभी तो ऐसे ही साल चलेगा ये। या सर्वेंट क्वार्टर किसी के पास है तो ठीक है, अदरवाइज देयर रूफ टॉप में भी देयर ओनली ऑप्शन। ओके, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, ऑलराइट। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट सोशियोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ क्राइम। तो उससे पहले कि मैं सोशल फैक्टर्स पर आया हूँ, ठीक है, हमारे पास 10 मिनट है, उसके बाद डिस्कनेक्शन, तो फिर जल्दी वो लिंक पर आकर जल्दी कनेक्ट हो जाएगा। तो उससे पहले हम 9-10 मिनट में हम जो सबसे अहम चीज होगी जो मैं वाइंड अप करना चाहूंगा वो होगा कि लर्निंग क्या है, सोशल लर्निंग क्या है। इफ यू नो हाउ वी लर्न acquire behavior, how we learn human behavior, how we acquire skills, then you can get to know about how crime can be learned. Okay, because crime is one of the social behavior. It's one of the social social norms, based on social norms and practice. Okay, so we have to know about that. What are the methodology of learning? What is how to what way we learn and we acquire behavior? We possess, we acquire, we retain, and we reproduce a behavior. Okay, it's not something biologically. You know, कुछ कुछ ऐसे behaviors हैं जो biologically हम सीखे होते हैं. Okay, रोना, खाना, पीना और physical needs. These are the instinctive biological behaviors. Okay, हमें जरूरत नहीं होती सीखने के लिए. Okay, लेकिन कुछ ऐसे behaviors हैं that we eventually learn as we grow. Okay, skills are there: writing, reading, speaking, walking, running, fighting, even bodybuilding, and all other skills. They are not they're not by birth. They will be learned through a process of learning. Now we have to know that what is an ideal process of learning. What is an ideal process of learning? Okay, और उसी process, वही process अगर हमें पता है तो फिर we can easily learn a behavior. अगर हमें वो process नहीं पता तो फिर शायद हम सीख तो लेते हैं लेकिन the results are not effective. Okay, so within the chronology of psychology there are three types of learning. There are three types of learning. Number one, classical conditioning. Number two, operant conditioning. And number three, learning through observation. सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग, उसको हम कहते हैं लर्निंग थ्रू एसोसिएशन. लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, that's known as classical conditioning. Okay, number two, operant conditioning. Operant, operant conditioning. Okay, I sent a message. You can see the text. That's operant conditioning. Okay, so that is operant conditioning. इसको क्या कहते हैं? Learning through consequences. Learning through consequences. Then third we have learning through observation. उसको हम ये भी कहते हैं learning through modeling. Learning through modeling or learning through observation. सबसे पहले आ जाए थोड़ा briefly learning through classical conditioning or learning through association. You know, a lot of behavior can be learned through association, through connection, through interaction. Okay, सोसाइटी में एक बड़ा ऐसा बिहेवियर ऐसा होता है जो हम लर्न करते हैं बाय इंटरेक्टिंग, बाय कम्युनिकेटिंग and by acquiring behavior from people who actually have the expertise of the behavior. Okay, इसको मैं ऐसे define करूंगा. When two different stimulation, are two different behaviors who are not interconnected. You know, जैसे देखिए आप, खाना और भूख का लगना क्या है? एक कनेक्टेड बिहेवियर्स हैं. और ये आपकी तरबियत पे नहीं होता, ये आपकी नेचर पर डिपेंड करता है. हम सब की खाने और भूख का एक बड़ा आपस में एक गहरा ताल्लुक है. बोथ आर सेम स्टिमुलेशन. ओके, पेन का होना और चिल्लाना और स्क्रीम करना या क्राई करना, रोना,
दे आर इंटरकनेक्टेड बिहेवियर्स। नींद का आना और सो जाना, इसके लिए कोई हमें पता, हमें क्लास नहीं लेने पड़ते, हमें पता होता है नींद आए तो सो जाए। ठीक है, तो वॉक आप नहीं करते, सोते सोते आप सो जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर नेचुरल बायोलॉजिकल बिहेवियर्स दैट नेवर, दे डू नॉट रिक्वायर वी शुड लर्न देम। बट विद इन द क्लासिकल कंडीशनिंग, most of the behavior that cannot acquired through a same process, but that behavior can be acquired through a process of learning or association through one another. अब इस थ्योरी को टेस्ट किया था एक बड़े साइंटिस्ट ने, पेवलो। ओके, पेवलो ने रिसर्च की थी, एक थ्योरी बनाई थी, एक तजुर्बा किया था किस पर, डॉग पर। ओके, एवन पेवलो has researched on dog. What he has done, very briefly, let me share you. उसने एक पेट डॉग को एक कमरे में रखा for a few days और उसके बिहेवियर को असेस किया कि उस डॉग पर क्या, डॉग कैसे एक नया बिहेवियर सीखता है। जब दो बिहेवियर्स अलग अलग हों तो वो क्या प्रैक्टिस होती है जिसके बुनियाद पे वो डॉग फ्यूचर में दो बिहेवियर आपस में एसोसिएट कर लेता है, एंड देन ही लर्न बिहेवियर, न्यू बिहेवियर। ठीक है, तो क्या हुआ था कि अब देखिए ना, अगर डॉग के सामने अगर हम फूड की प्लेट लेके आए या गोश्त लेके आए तो डॉग क्या करेगा, डॉग सलाविया करेगा या खाएगा या दौड़ेगा उस फूड की तरफ। लेकिन अगर हम ऐसा कोई काम करें जो डॉग के लिए फायदेमंद नहीं हो तो डॉग न्यूट्रल रहेगा, मतलब जानवर न्यूट्रल रहेगा। तो क्या हुआ था कि अचानक वो बेल बजाई गई थी, रिंग बजाई गई थी बेल की अचानक, जब वो एक कमरे में बैठा हुआ था। तो हम और आप जब घर की बेल बजती तो हम क्या करते हैं, सो जाते हैं? नहीं, हम भागते हैं दरवाजे की तरफ, वी नो दैट कोई ना कोई होगा। We have learned that from our childhood. Whenever there's a ring of bell, we have to go to the door and have to open the door. We have to welcome the guest, or we have to see that कि कौन आया है बाहर। Okay. लेकिन हम अपने आप टेस्ट करेंगे तो पता नहीं पड़ेगा whether it is instinctive, biological, or do we have acquired a behavior through a process of learning or socialization. ठीक है, लेकिन उस डॉग की लर्निंग ये नहीं है, उसको जंगल या कहीं रोड पर नहीं सिखाया गया कि आप जब बेल बजे तो आपको दरवाजा खोलना है या आपको उड़ना है। ठीक है, तो उसके लिए नया बिहेवियर था। तो जैसे बेल बजी तो डॉग वैसे के वैसा ही न्यूट्रल रहा। He has not shown any sort of symptom or sign उसको क्या करना चाहिए, because that is not his dog business. ठीक है, तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन तजुर्बा किया गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, डॉग रिमेन वेरी वेरी न्यूट्रल। ओके, एक दिन क्या हुआ, बेल बजी और विद इन अ फ्यू सेकंड एक बंदा फूड की प्लेट लेके आ गया जहाँ के उस डॉग के आगे जहाँ मीट था। ठीक है, और डॉग ने वो मीट खाया। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, ये रिहर्सल की गई। फिर चौथे दिन जैसे ही बेल बजी लेकिन फूड की प्लेट नहीं आई। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या हुई कि फूड की प्लेट तो नहीं आई, लेकिन विद इन फ्यू सेकेंड जब डॉग ने देखा कि भाई फूड नहीं आ रहा, डॉग स्टार्ट स्लाविया, उसे स्लाविया करना शुरू कर दिया, उसके मुंह में पानी आ गया। किस पे, बेल के बजने और खाने का को एंटीसिपेट करके, खाने की सोच बना के उसने एक नया बिहेवियर सीख लिया कि स्टार्ट स्लाविया करना। मतलब उसने क्या सोचा जहन में, अब खाना आएगा और मुझे खाना खाना होगा। ठीक है, जो पहले उसके लिए सीखा हुआ नहीं था। तो इससे क्या पता पड़ा कि हम एक खास किस्म का एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट देखकर कोई भी नया बिहेवियर सीख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्लास में सीखते हैं तो क्या करते हैं, उसके लिए हम क्लासरूम जाते हैं, हम कोर्स सिलेबस लेते हैं, हम बुक्स परचेज करते हैं, हम उनको स्टडी करते हैं, हम इम्तिहान में अपीयर होते हैं और फिर उसके बाद हम एक नया बिहेवियर सीखते हैं। ओके, लेकिन अगर हम क्लास भी नहीं अटेंड करें, हम बुक्स भी नहीं लें, हम नोट्स भी नहीं पढ़ें और हम इम्तिहान में अपीयर भी नहीं हो, तो क्या होगा, हम एक नया बिहेवियर नहीं सीख सकते। तो ये लर्निंग क्या हुई, लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, we call it classical conditioning, where two different behavior, they are interrelated through a process and rehearsal or that series of events, then we try to become a new behavior. So this is known as classical conditioning. If you have any question, you can ask me. I'll move further then. सर क्लासिकल कंडीशन के एक न्यू एग्जांपल भी तो थी ना, चूंकि हम आपने जो ये एग्जांपल बताई है ये तो हमने इंटर क्लास की बायोलॉजी में पढ़ी है, मींस कम से कम भी ये कोई 60-70 साल पुरानी एग्जामिनेशन है। इसके बाद की जो एग्जामिनेशन हुई थी वो आपके इल्म में है? क्या बताएं मुझे आप, क्या क्या कहने हैं सर आप? हमें सर हमें तो याद नहीं आ रही सर इस पे, इसकी थॉट के ऊपर। नहीं हो, वरना 60-70 साल की बात नहीं हो रही ना, बात हो रही कि एक बिहेवियर लर्न कैसे किया जाता है। ठीक है,
मतलब ये बात तो है नहीं कि 100 साल या 200 साल या 250 साल पहले, ठीक है, आपका मजहब भी 1400-1500 साल पहले आया था, तो फिर एक नया मजहब लेके आ जाए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर एक चीज एक टाइम एक रियलिटी एक्सप्लेन कर रही है, तो फिर वो चीज एक ट्रू एक्सप्रेशन दे रही है। यहाँ पे ये बात हो रही है कि इंसान किस तरीके से नया बिहेवियर एक्वायर